یہ رسپانسبلٹی ڈالنی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ریئیکٹ نہیں کرے گا، چاہے کتنا بھی انپلیزنٹ ایکسپیرئنس اس کے ساتھ ہو، چاہے کتنا بھی اس کو کوئی پریشان کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تبھی دعویٰ ورک انہنڈرڈ وے میں چلتا رہے گا۔ رسول اللہ نے بہت ہی پیشنٹلی اپنا میسج لوگوں تک پہنچایا اور اسی طرح وہ کام کرتے رہے اور ان کے صحابہ بھی اسی طرح کام کرتے رہے، لیکن وہاں کے جو لیڈرز تھے کیونکہ ان کا بزنس انٹرسٹ، مٹیریل انٹرسٹ کل ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اور برداشت نہیں کریں گے۔ وہاں پر ایک ٹرائبل پارلیمنٹ تھا جس کو دارالندوہ کہتے ہیں، وہاں پر سارے لیڈرز اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس فینومینا کو ڈسکس کیا کہ ہمارا کلچر ختم ہو رہا ہے، ہماری اکانومی شیٹر ہو رہی ہے، ہم کب تک اسے برداشت کریں گے۔ تو ان لوگوں نے یونانیمسلی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم رسول اللہ کو قتل کر دیں گے، یہ بات رسول اللہ تک پہنچی۔ اب رسول اللہ کے پاس دو آپشن تھے، ایک آپشن یہ تھا کہ رسول اللہ اپنے کمپینینز کو اکٹھا کرتے اور کہتے کہ ہمیں بھی لڑنا ہے، مکہ ہمارا وطن ہے، ہمارا نیشن ہے، ہماری برتھ رائٹ ہے کہ ہم یہیں رہیں۔ تو اگر رسول اللہ ایسا کرتے تو وہاں پر ایک جنگ شروع ہوتی، کچھ لوگ ادھر کے مارے جاتے اور کچھ مسلمان بھی مارے جاتے، لیکن رسول اللہ کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوتا، رسول اللہ کا مشن ختم ہو جاتا، کیونکہ ابھی تک رسول اللہ کا میسج صرف مکہ تک پہنچا تھا، مکہ کے باہر نہیں پہنچا تھا یا بہت کم پہنچا تھا، اور رسول اللہ کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ وہ پورے عرب تک اپنا میسج پہنچائیں، بلکہ پوری دنیا تک اپنا میسج پہنچائیں۔ تو اگر رسول اللہ وہاں پر لڑ جاتے تو لڑ بھڑ کے ان کے سارے کمپینینز ختم ہو جاتے اور ان کا مشن وہیں اینڈ ہو جاتا۔ تو رسول اللہ نے وہ آپشن نہیں لیا، رسول اللہ نے پلان کیا کہ وہ اپنے پلیس آف ورک کو چینج کر دیں گے۔ رسول اللہ نے 2 آدمی بھیجے مدینہ، یہ جاننے کے لیے کہ مدینہ میں سچویشن کیسا ہے اسلام کے لیے۔ تو ان لوگوں نے رپورٹ دی رسول اللہ کو کہ وہاں پر سچویشن بہت ہی فیوریبل ہے، لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مائیگریٹ کر لیں گے مدینہ۔ مدینہ 300 میل کے فاصلے پر ایک اور شہر تھا مکہ سے۔ تو رسول اللہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنا پلیس آف ورک چینج کر دیں گے، اور انہوں نے خاموشی سے پلان کیا کہ وہ مائیگریٹ کریں گے، اور رات کے اندھیرے میں اونٹوں پہ سفر کرتے ہوئے وہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اگلی بار ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر صبح ای ٹی وی اردو کی خوشبو سے مہکے آپ کا گھر آنگن، مانگنے والے مانگ خدا سے، روحانی کیفیت سے سرشار قوالیوں کا حسین گلدستہ، پروگرام محفل سما، روزانہ صبح 4:30 بجے۔ قرآن ہمیں ایک بہت بڑی چیز دیتا ہے، وہ ایک کرش، حوصلہ۔ پر امید زندگی کا سفر، پروگرام رہنمائے زندگی، ہر پیر تا جمعرات صبح 5 بجے۔ تلاوت قرآن ما ترجمہ، پروگرام فرمان الہی، ہر جمعہ تا اتوار صبح 5 بجے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز فجر کے روح پرور مناظر، پروگرام نماز فجر، روزانہ صبح 5:30 بجے۔ پروگرام نوائے سروج، روزانہ صبح 6 بجے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ای ٹی وی اردو، بہار صبح۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ، اکثر رسوئی، پیر تا جمعہ دوپہر 1:30 بجے، صرف ای ٹی وی اردو پر۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام
नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बेटी की सियासी कुर्बानी देने से डर रही हैं सोनिया गांधी। दिल्ली के रामलीला मैदान पर मोदी का खिताब। आरएसएस हराओ देश बचाओ, लखनऊ के सेमिनार में सेकुलर ताकतों ने दिया नारा। इंडो ईरानियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का सेंटर बेंगलुरु में कायम। मगरबी मुल्कों के मुकाबले एशियाई पड़ोसियों के बीच तजारत को फरोग देने पर दिया गया जोर। बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने मरकज की यूपीए हुकूमत की पॉलिसियों को जमकर निशाना बनाया। मोदी ने मरकजी हुकूमत को नाकाम करार देते हुए लोकसभा इंतखाबात से कबल अपना विजन पेश किया। उन्होंने स्मार्ट शहरों की हैसियत से फरोग देने और हर रियासत में आईआईटीज, आईआईएम्स और एम्स के क़याम का खाका पेश किया। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान पर पार्टी की कौमी कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार न बनाए जाने पर मोदी ने कहा कि सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी की यकीनी शिकस्त के पेश नजर अपने फर्जन की सियासी कुर्बानी देने से गुरेज किया। जब पराजय बिल्कुल निश्चित दिख रहा है, विनाश सामने नजर आ रहा है, तो क्या कोई मां अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए तैयार होती है क्या? कि देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे तो प्रधानमंत्री लेने के लिए, लेकिन वापस गए गैस के 3 बॉटल लेकर के। गैस के 3 सिलेंडर लेकर के वापस गए। नरेंद्र मोदी ने मणिशंकर अय्यर के चाय वाले रिमार्क पर कहा कि चाय बेचने वाले ये फख्र महसूस करते हैं कि उन्हीं में से आज एक शख्स वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार बना है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर गुजरात के वजीर आला ने कहा कि वो एक आला खानदान में पैदा हुए हैं और एक चाय बेचने वाले के खिलाफ इंतखाब लड़ने को अपनी तौहीन समझते हैं। उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। यूपीए हुकूमत पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में मुल्क ने जितने बुरे दिन देखे हैं, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। करप्शन, महंगाई और गुर्बत उरूज पर है। मोदी ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क पर 60 बरस तक हुकूमत की है और अब अवाम मुल्क में तब्दीली लाने के लिए उन्हें 60 माह दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। सीपीआईएम लीडर वीरेंद्र करात ने बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को कारपोरेट वर्ल्ड का नुमाइंदा करार दिया है। लखनऊ में फिरका परस्ती के खिलाफ सेमिनार में शिरकत करने आई वीरेंद्र करात ने मोदी से सवाल किया कि खुद को चाय बेचने वाला बताने वाले मोदी बताएं कि उन्होंने चाय वालों की फलाह बहबूद के लिए क्या काम किए हैं। फिरकावारियत के खिलाफ लखनऊ में मुनक्किदा सेमिनार में मुकर्रिर ने फिरकावारियत से पूरे मुल्क और कौम को खतरा बताकर आगाह किया। उन्होंने इसका मुकाबला करने के लिए तमाम तबकात के सरगर्म होने पर जोर दिया। इस सेमिनार में फिरका परस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्रिर ने 2014 के आम इंतखाबात में फिरका परस्त ताकतों से होशियार रहने की अपील की। पूरे हिंदुस्तान भर में आरएसएस जिस आक्रामक रूप में अपने एजेंडा, सांप्रदायिक एजेंडा, ध्रुवीकरण का एजेंडा को लेकर चल रहे हैं, वो एक पूरे देश के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। इसलिए ये सांप्रदायिकता का मुद्दा किसी एक दल या किसी एक विचारधारा में विश्वास करने वालों का नहीं है, हर नागरिक का सामने है। आज मोदी जी ने दिल्ली में कहा कि वो कामदार हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपने जितने दिन आप राज सत्ता में रहे, आपने किसके लिए काम किया,
आज आप अपने गरीब परिवार को याद कर रहे हैं, लेकिन जब आप सरकार चला रहे थे आपने चाय वालों के लिए किया क्या? दिल्ली में आप चाय वालों की बात कर रहे हैं और अहमदाबाद में उनकी तमाम स्टॉल्स को बुलडोजर लेकर तोड़ रहे हैं, पूरा तोड़ रहे हैं बुलडोजर लेकर तमाम। मैं चुनौती के साथ कहती हूँ, एक भी चाय वाले वो बताए जहाँ उनको लाइसेंस देकर मदद करके उनकी चाय की जो पेशा है, जो काम है, उसको चलाने की मदद दी। बिल्कुल उल्टा हुआ। तो ये लोग जो कॉर्पोरेट जगत के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता के बीच इस संदेश को लेकर जा रहे हैं, देश बचाओ, आरएसएस बीजेपी के प्रतिनिधि को हराओ। अब तक कंज्यूमरिज्म के हवाले से हिंदुस्तान के अंदर फर्कावारियत नहीं फैल रही थी, अब बाकायदा कंज्यूमरिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। मसलन पिछले 5-6 दिन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा रवैया देखिए तो आपको साफ लगेगा कि जैसे एक बाकायदा कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से एक कॉमनल एजेंडे को हिंदुस्तान में जिंदा रखकर मोदी साहब को जिंदा रखा जाए। समाजी और अदबी तंजीम अनुबंध के ज़रिए एहतमाम कानपुर में इस्तकबाल 2014 के उन्वान से एक अदबी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस अदबी प्रोग्राम में हिंदी और उर्दू अदब से ताल्लुक रखने वाले अदीबों और शायरों ने समाज को कौमी यकजहती और खैर सगाली का पैगाम दिया। कि जो भी हमारे अदबी और समाजी माशरे के लोग हैं वो आगे बढ़ चलते आए और मुल्क में जो भी मौजूदा हालात हैं उसमें बराबर से हिस्सा लें, पीछे न बैठें, आगे ही सफ में आएं और मशाल को अपने हाथ में लें और एक नई रोशनी और नई उम्मीद और नई उमंग, नई तरंग में, नए जुनून के साथ उसमें शमूलियत करें। तो उसके लिए एक मतलब शेर कि नींद तो गई अब आंखों को नहीं जाने देंगे, नींद तो गई अब आंखों को नहीं जाने देंगे, रात भी जाए मगर ख्वाबों को नहीं जाने देंगे, रात भी जाए मगर ख्वाबों को नहीं जाने देंगे। जो नहीं जानते मोहब्बत में वफादारी को, जो नहीं जानते मोहब्बत में वफादारी को, उनकी चाहत में वफाओं को नहीं जाने देंगे। चाहता हूँ कि हम सब लोग आपस में एक दूसरे से मिलकर रहें और हिंदुस्तान जिस अदबी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी जिस पहचान के लिए जाना जाता है वो बढ़े, हम अपने कल्चर की ओर बढ़े, अपनी धरोहर की ओर बढ़े, अपनी विरासत की ओर बढ़े, अपनी उस गजल की ओर बढ़े जिसको हमने नए गानों के चक्कर में पीछे छोड़ दिया है। तिजारती और सनती तरक्की के लिए मगरबी ममालिक पर एशियाई और इस्लामी ममालिक मुनहसर न रहें। एशियाई ममालिक की तामीर और तरक्की में हिंदुस्तान और ईरान अहम रोल अदा कर सकते हैं। अमेरिका की पाबंदियों के बावजूद ईरान और हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुकात मुतवाजिन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार बेंगलुरु में मुनक्किदा हिंद ईरानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजलास में मुकर्रिरीन ने किया। के चंद बड़े शहरों के बाद कर्नाटक के दारुल-हुकूमत बेंगलुरु में भी इंडो ईरानियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सेंटर का आगाज हुआ। सेंटर के इफ्तिताही तकरीब में ईरानी सफीर बराए हिंद गुलाम रजा अंसारी ने शिरकत की। गुलाम रजा ने कहा कि मगरबी ममालिक की पाबंदियों के बावजूद गुज़श्ता साल ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारत में गैर मामूली इजाफा हुआ है। इस मौके पर मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान ने कहा कि इस्लामी और तीसरी दुनिया के मुल्कों को अपनी तरक्की के लिए सिर्फ मगरबी ममालिक पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। Last year, 2013, was a flourishing year of business between Iran and India. And the Indian government, especially the Minister of Commerce, were very happy when we are trying to move toward a better balance in our trade. Now we are not just a seller of oil to India, but also we are a country of buyer of Indian products as well. And see that more and more products of each other countries are exchanged instead of depending always on West. India has much more to offer to the entire Arab world, Islamic world and the third world countries, and we should give up the dependence on the West. कर्नाटक के वजीर बराए शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर रोशन बेग ने कर्नाटक में सरमायाकारी के मौकों पर रोशनी डाली। Our government has initiated many investor-friendly policies and is proud of its
excellent human resources and its congenial industrial climate. The opportunities in the state are excellent. To create awareness regarding available opportunities for trading, export and imports between our two countries and exchange of ideas, knowledge and technology. हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में 4000 से ज्यादा ईरानी तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। तिजारत के साथ तालीम और सकाफत के शोबों में भी दोनों मुल्कों को अपने ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईरान नेशनल वक्फ काउंसिल का वफ्द हिंदुस्तान के दौरे पर है। वफ्द के इस स्टडी टूर की क़यादत नेशनल वक्फ काउंसिल ईरान के चेयरमैन आयत अली मोहम्मदी कर रहे हैं। दिल्ली में वाक़ई ईरान कल्चरल हाउस में दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चौधरी मतीन अहमद ने इस वफ्द से मुलाकात की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर और मरकजी वजीर ए अहमद 2 मार्च को रांची का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे के पेश नजर मुस्लिम लीग की मजलिस आमला की रांची में मीटिंग हुई। इस मीटिंग की सदारत लीग के रियासती सदर हाजी अमजद अली ने की। उन्होंने वाज़ेह किया कि आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मुस्लिम लीग के 2 उम्मीदवार खड़े करेगी। 2 मार्च को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कौमी सदर जनाब ए अहमद साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब कादिर मोहिद्दीन साहब और ईटी बशीर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अब्दुल रहमान साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये लोग आ रहे हैं। और फिलहाल तो लोकसभा है तो 2 कैंडिडेट हम लोग खड़ा कर रहे हैं। एक तो राजमहल है और एक और पर अभी मंथन चल रहा है कि कौन सा ज्यादा मजबूत होगा और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी हम लोग बैठे हैं। हम समझते हैं ये सेक्युलर पार्टी है और हमें सबों का सपोर्ट मिल रहा है। खास बात में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है, क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी प्रदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो
جس دن حضور قیامت سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر، دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ آندھرا پردیش اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے نئے مقرر کردہ مینیجنگ ڈائریکٹر اور نائب صدر پروفیسر شکور نے کہا کہ مالیاتی کارپوریشن کے لیے مختص کردہ 700 کروڑ روپے بجٹ کو مختلف اسکیمات کے ذریعے خرچ کرنا ان کی پہلی ترجیح ہوگی۔ پروفیسر شکور کرشن چندر پر ساہتیہ اکیڈمی کی جانب سے سالار جنگ میوزیم میں منعقدہ سمپوزیم سے خطاب کر رہے تھے۔ فائنانس کارپوریشن کا بجٹ خرچ نہیں ہو پایا تھا تو حکومت نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے، کیونکہ 70 دن باقی ہے ابھی فائنینشیل ایئر ختم ہونے، 700 کروڑ کا بجٹ ہے، روز 10 کروڑ روپے خرچ کرنا ہے ہر دن، تو اس کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں یہ بھی بجٹ اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے لیے جو بینیفیشریز ہے وہ بینیفیشریز تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، وہ اسکالرشپ کی شکل میں ہو یا فیس ریمبرسمنٹ کی شکل میں ہو یا ماس میرجز کی شکل میں ہو یا اور دوسری اسکیمیں ہم لوگ، کیونکہ کل رات میں بہت دیر گئے جائزہ لیا تھا، جس کے بعد ہم لوگ کچھ نئی اسکیمات کو جو ہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ بجٹ اقلیتوں کے لیے جو بجٹ یہاں پر سینکشن کیا گیا ہے وہ اقلیتوں تک پہنچ جائے، جلد از جلد پہنچ جائے۔ اس بجٹ میں کوئی انسپینڈ بیلنس نہ رہ پائے، لیکن مشکل ہے، جتنا ہم سے کوشش ہو سکتی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ آندھرا پردیش کے محبوب نگر ضلع کے نارائن پیٹ کی معزز شخصیت اور مقامی جامع مسجد کے نائب امام خواجہ معین الدین خرادی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ نارائن پیٹ کی جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جامع مسجد سے متصل احاطے میں ان کے جسد خاکی کو سپرد لحد کیا گیا۔ مرحوم تمام مذاہب کے لوگوں میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بہترین قرت کے لیے ان کے گھرانے کو بین الاقوامی سطح پر شہرت حاصل تھی۔ ان کے والد کو مکہ مکرمہ میں اذان دینے کا بھی اعزاز حاصل تھا۔ الطاف حسین حالی اردو کی وہ مایہ ناز شخصیت ہے جنہوں نے تنقید کی سب سے پہلی اور مستند کتاب لکھی۔ ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری کو سنوارنے میں مؤثر ہتھیار کا درجہ رکھتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار NCPL کے تعاون سے غالب اکیڈمی کے زیر اہتمام دہلی میں خواجہ الطاف حسین حالی کے عنوان سے منعقدہ ایک روزہ کل ہند سیمینار میں کیا گیا۔ الطاف حسین حالی کو اس دنیا فانی سے کوچ کیے ہوئے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ حالی کے یہاں حب الوطنی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ملک کی آزادی میں کانگریس کی جدوجہد حالی کے طرز فکر کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے باوجود حالی کو حکومتی سطح پر نظر انداز کیا گیا۔ حب الوطنی ان لوگوں کی بہت مثبت ہے۔ حالی وغیرہ کی حالی وغیرہ یہ چاہتے تھے کہ وہ خرابیاں جو ہماری تہذیب میں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں ان سے ہمیں نجات ملنی چاہیے۔ یہ ہماری محرومی ہے اور حکومت کی محرومی ہے کہ الطاف حسین حالی جیسے ریفارمر کو، جیسے مصلح قوم کو اور جیسے مخلص انسان کو نظر انداز کیا گیا۔ اردو کے دانشوروں کا کہنا ہے کہ الطاف حسین حالی کے
नस्र, मुसद्दस और सवानह निगारी के बाकायदा आगाज को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ताहम दिल्ली में मुनक़दा इस सेमिनार में इस बात पर तवज्जो दी गई कि हाल ही की तसनीफात का समाज पर किस तरह असर पड़ा और अगर नहीं पड़ा है तो उसके लिए किस तरह की हिकमत अपनाई जानी चाहिए। हाली जितने बड़े शायर थे, जितने बड़े मुस्लिह थे, इतने बड़े नसरनिगार भी थे। हाली ने सिर्फ मुकदमा शेर व शायरी ही नहीं लिखा, बल्कि हाली ने सवान निगारी की भी बाकायदे इब्तिदा की। शख्सियत के रुखा में शुमार किए जाते थे। उनका जो खास मिशन था वो तालीमी था और उन्होंने जो कुछ कहा है हिंदुस्तान की ज़बून हाली पे, मुसलमानों की ज़बून हाली पे और समाज की जो हालत थी उस तरफ्तर हालत पर, वो सब आज भी जो है किसी न किसी सूरत में हमारे सामने वो आज वही मंजरनामा पेश होता है। एक रोजा कुल हिंद सेमिनार में हाल ही की मुख्तलिफ जिहाद पर तकरीबन 15 मकाले पढ़े गए। 3 इजलास पर मुश्तमिल इस सेमिनार की सदारत बितरतीब प्रोफेसर शमीम हनफी, प्रोफेसर अब्दुल हक और प्रोफेसर काजी उबैदुर रहमान हाशमी ने की। ETV न्यूज, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैदर अब्बास रिजवी का कहना है कि हक जानकारी कानून यानी कि RTI अवाम के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। इसके जरिए पूरे निजाम में शफाफियत लाई जा सकती है। ETV नुमाइंदा इरफान अली से खुसूसी बातचीत करते हुए उन्होंने मुसलमानों से भी ज्यादा इस्तेफादा करने की अपील की। वाज़ेह है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश ने हाल ही में 8 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नरों का तकर्रुर किया है। उत्तर प्रदेश के नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैदर अब्बास रिजवी साहब, हम उससे मालूम करते हैं कि क्या मकसद लेकर वो इस मैदान में आए हैं और किस तरीके के अपनी कम्युनिटी को और लोगों को इससे फायदा पहुंचाएंगे। रिजवी साहब, आपका ETV में खैर मकदम है। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि क्या मकासद लेकर आप इस मैदान में आए हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि दिस होल RTI इज अ विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। 150 years have happened and after the Britishers left India, तो वो जो स्टील फ्रेम वो बना के गए थे मिस्टर विंस्टन चर्चिल यहाँ से, तो दैट स्टील फ्रेम हैज टू एन एक्सटेंट बीन ब्रोकन एंड पीपल हैव फेल्ट एम्पावर्ड, and which I think is a great achievement of democracy in any part of the world. तो सहाफत में आपने एक लंबी पारी खेली है, एज ए फ्रीलांसर सहाफी के तौर पर आपने काम किया है, अब आपको एक आईनी ओहदा मिला है, कैसे इसके फायदे को ट्रांसफर करेंगे लोगों तक? देखिए, as far as me as a journalist is concerned, मैंने तो बहुत ही फ्रीलांस contributions किए हैं। मैं कभी किसी भी अखबार के साथ बाज़ाबिता नहीं जुड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, Asian Age Delhi, then Milli Gazette. For as many as 10 years I had been writing for them. Then Radiance Weekly also. Indian Current में लिखा मैंने। एक मैगजीन आती थी हिमाल from Kathmandu, which has a lot of credibility in the whole of South Asia. मैं उसके लिए भी लिखता रहा। बिब्लियो इंडिया में मैं रिव्यूज करता रहा और मीन टाइम एक मैगजीन आती थी फ्रॉम कालीकट, मैंने उसके लिए भी बहुत कंट्रीब्यूशंस किए। और जहां तक इसका सवाल है, देखिए, हर एक फर्द वाहिद को यह हक होना चाहिए कि वो पूरे तौर पर आए और अपनी बात को कह सके विदाउट एनी हिचेस, विदाउट एनी मीडियम। ही शुड स्ट्रेट अवे कम एंड ही शुड सीक हिज रिड्रेसल। मेरी यही प्रायोरिटी रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने केसेस को डिसबर्स करूं in as much short time as possible. आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उस कम्युनिटी में इसके बारे में जानकारी बहुत कम है, खास तौर से जानकारी है कि एक्ट के बारे में मुसलमानों में बहुत अभी बेदारी नहीं आई है, तो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें? मैं गुजारिश करूंगा अपने तमाम साथियों से जो मेरे साथ रहे हैं कि वो लोग मेरी खिदमत हाजिर हैं, वो आए और आने के बाद इस पे सेमिनार्स करें, सिंपोजियम्स करें, वर्कशॉप्स करें।